Yeah, good morning, everyone. In the last class in the morning, we did talk about the following questions. Few word problems were considered, and that's very important to understand the basic concepts. So, the same question I used trigonometry, and this has simplified the question. The calculations were lesser. The choice is yours. Whichever method you are comfortable with, one can follow. But at the same time, you cannot solve every question using trigonometry. Then that was another question which we have considered very important type of the problem. And this was the question which we were discussing. So the question goes like this: find the point on the curve y square equal to 4x, which is nearest to the point 2 comma 1. So y square equal to 4x is a parabola. I've used a software program to draw it. So even you can go with a rough sketch, it hardly matters. So y square is 4x is a right parabola, vertex is at the origin. And we need to find the point which is nearest to 2 comma 1. So here is the location of 2 comma 1. And visually we can see the point seems to be this somewhere over here, which is say 1 comma 2. I'm not sure okay, whether this will be the answer or not, but it seems that the answer is yahan 1 hoga na, so 1 comma 2. But let's verify or let's see whether it is correct or not. So let me assume the coordinates of the point nearest is x comma y. Any point on this curve, this that is x comma y. So minimize nearest होने का मतलब I have to minimize the length AB. AB using the distance formula, root x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब ये ए बी लेंथ है, उसको एल कह दिया. सिंस रूट इज इन्वॉल्व, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया और एल स्क्वायर को एल डैश कह दिया. इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के वाई एल डैश एंड हाउ इट इज सपोर्टिंग एंड सिंप्लीफाइंग द सिचुएशन. रूट हटा दो तो L will be maxima or minima if as per L square. This is in two variables, but we will be differentiating this in one variable. तो आप x की जगह यहां से y की वैल्यू लिख दो, वो कितना आ गया y स्क्वायर बाय 4. Replace the value of x y square by 4. Now it has become only the function of y. तो अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे. करिए अब इसे डिफरेंशिएट. नाउ दैट डेरिवेटिव इज डायरेक्ट. सो लेट मी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस. रूट के अंदर 2y बाय 4. पहले हम चेन रूल लगाते हैं. सो इस तरह से करते हैं. पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 2y एंड बाय 4. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई माइनस 1. लेट मी सिंप्लीफाई दिस. सो 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8 ओवर 4 आफ्टर एलसीएम, और ये आ गया था y बाय 2. एंड देन ये टर्म एज इट इज. 2 से 2 कैंसल और 1 बाय 4 टाइम्स y अंदर कर दो मल्टीप्लाई, y क्यूब माइनस 8y प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1. Take the LCM. 4. This is y cube minus 8y or plus 8 times y minus 1. When I open the bracket, one can easily check ये इसके इक्वल आ जाएगा.
बिकॉज 8y से 8y कैंसल्ड आउट। मेन यही था, अगर आप यहां तक पहुंच गए इसके बाद तो इट इज वेरी सिंपल, डेरिवेटिव आ चुका है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट डेरिवेटिव equals 0. One can easily note when I put this is equal to 0. This is only possible when y cube minus 8 is 0 or y is equal to 2. When y is 2, आप कर्व में पुट कर दीजिए, और x will be 1, तो पॉइंट क्या आ गया 1,2। एज एक्सपेक्टेड, देखने से लग ही रहा था, ये रहा ये वाला पॉइंट 1,2। बट अभी हमने एक चीज जस्टिफाई नहीं करी है, नियरेस्ट वाला पॉइंट। तो अगेन आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव हो रहा है, ये याद रखिए, ये था सिंगल डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट दिस अगेन, तो क्या दे देगा ये 1/4 तो चलो बाहर था, एंड 3y²। कांस्टेंट का 0 हो गया डेरिवेटिव। गेट द डबल डेरिवेटिव, वैसे तो आइडिया लग चुका है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, y² इज इन्वॉल्व। इवन आप y की वैल्यू 2 निकाल चुके थे, तो 2 के ऊपर आप ये एक्सप्रेशन बता दो कितना आ रहा है, दैट इज 3, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब L डैश, दैट इज L इज मिनिमम। लेंथ मिनिमम का मतलब AB डिस्टेंस मिनिमम हो गया, और इसका मतलब B इज द पॉइंट विच इज नियरेस्ट, हेंस प्रूव। और मतलब एक तो ये प्रूव हो गया कि वो मिनिमम है, बट क्वेश्चन में आपसे वो पॉइंट पूछा था, फाइंड द पॉइंट। सो रिक्वायर्ड पॉइंट आप ऊपर निकाल ही चुके हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,2, योर रिक्वायर्ड आंसर। Any doubt to anyone? Before we move on, mark your attendance, everyone. चेक दिस आउट। अब ये एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया है, बट जैसा मैंने बताया था, पहले मैं 2D के क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, तो उन पे फोकस करेंगे। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। सर्कल का पेरीमीटर, तो सर्कल का मैंने रेडियस x ले लिया, और स्क्वायर है साइड उसकी y ले ली। तो सम ऑफ पेरीमीटर्स का मतलब p कितना हो गया, फर्स्ट वाले का पेरीमीटर हुआ 2πr, तो x हो गया 2πx, और प्लस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4y, और ये किसके इक्वल गिवन है, k के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू k, दिस इज गिवन।
विद प्रैक्टिस आइडिया लग जाएगा। आप x या y किसी की एक की वैल्यू को एलिमिनेट कर लीजिए। तो लेट्स से आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, आप x भी कर सकते थे, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस लेटर। तो आइडिया लग जाता है, गेट वन ऑफ द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर। विद दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग, k इज अ कांस्टेंट। अब करना क्या है? प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। मिनिमाइज, लीस्ट का मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज किसे करना है? सम ऑफ द एरियाज। और कह रहे हैं कब होगा ये? व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो y इक्वल टू 2x अगर होगा तब सम ऑफ एरियाज मिनिमम होगा। दैट वी नीड टू जस्टिफाई। तो दो चीजों की बात हो रही है, सम ऑफ एरियाज पे फोकस। तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया फंक्शन सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। और अब आपको इसे मिनिमाइज करना है, और अंडर द कंडीशन ये y इक्वल टू 2x, ये गिवन नहीं है, ये जस्टिफाई करना है। So once I have written the expression for a, almost believe me 50% of the question is done अगर आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। प्लीज रीड द क्वेश्चन, मैच द डायग्राम विद द थ्योरेटिकल पोर्शन, और कहीं भी कोई डाउट है तो क्लैरिफाई, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल चीजें ही अगर क्लियर नहीं करेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, तो आगे और मुश्किल ही बनेगा। a will be pi x square प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू ऊपर निकाल लिया था, k माइनस 2 पाई x बाय 4, और इसका होल स्क्वायर। तो आई कैन एक्सप्रेस दिस एज पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 बाहर। एंड प्लीज रिमेंबर, डू नॉट ओपन दिस स्क्वायर। कैलकुलेशन को इजी को टफ मत बनाया करना। तो ये ही एरिया फंक्शन में लेने वाला हूं, लाइक दिस। और अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा की बात है। तो दिस इंप्लाई डेरिवेटिव क्या आ गया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ऑब्वियसली, क्योंकि k कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहली टर्म का डेरिवेटिव 2 पाई x हो जाएगा, प्लस 1/16 कांस्टेंट, इस टर्म का डेरिवेटिव nx n-1 पावर फंक्शन, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, k कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, और -2 पाई x का डेरिवेटिव -2 पाई। सिंप्लीफाई दिस, 2 पाई x 2 टू द 4, और 4 और 16 कैंसल हो गए, तो पाई/4 बच गया, इंटू k माइनस 2 पाई x। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dA/dx इक्वल टू 0। ये नेगेटिव की वजह से ये RHS में आकर इक्वल टू हो जाएगा। क्लियरली पाई से पाई कैंसल, 4 आगे LHS में 8x,
is equal to k minus 2 pi x. Combine like terms. Any doubt to anyone? Take x common and simplify k upon 8 plus 2 pi, और I can write x as k upon 2 कॉमन कर दो और चलो प्रॉपर वे में लिखें तो पाई प्लस 4. क्वेश्चन में यूनिट कहीं भी मेंशन नहीं थी, तो मैं x को एज इट इज लिखूंगा विदाउट एनी यूनिट. अब x आ चुका है. गेट द डबल डेरिवेटिव, बिकॉज अभी मिनिमा वगैरह भी पेंडिंग है. तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, चेक करिए ये रहा था डी ए बाई डी एक्स. तो आप इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बेसिकली, तो ये आ जाएगा 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है माइनस पाई बाय 4 एज इट इज. और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी आ रहा है माइनस 2 पाई. सो दिस विल बी 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 4, which is clearly 2 pi plus pi square by 2, clearly positive. हमें यही चेक करना था. तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ए हो चुका है मिनिमम और लीस्ट. तो लीस्ट वाला पार्ट तो हो गया, बट स्टिल y इक्वल टू 2x अभी ये पेंडिंग है. तो उसके लिए क्या करेंगे? नाउ y किसके इक्वल था? ये रही y की वैल्यू k माइनस 2 पाई एक्स बाय 4. x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो y विल बी 1 बाय 4 बाहर, k माइनस 2 पाई x, और x निकाला है हमने अभी. ये x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं. टू से 2 कैंसल, टेक द एलसीएम. पाई प्लस 4 और इधर आ जाएगा k पाई प्लस 4 के माइनस पाई के. ये और ये कैंसल, 4 से 4 कैंसल, k अपॉन पाई प्लस 4. This is the value of y. Just compare the values of x and y. Clearly y आ गया 2x के इक्वल. ये 2 जो है आप यहां ले आइए, और जो बच गया k अपॉन पाई प्लस 4 वो तो y के इक्वल है. तो y इज इक्वल टू 2x as required. So step by step we completed with this solution. चेक कर लीजिए ध्यान से, which completes our solution. Any doubt to anyone? I'm not getting भानु. पाई will also come. कहां पर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा मेरे हिसाब से. तो
इज करेक्ट। ठीक है। सो एज आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि अब इस तरह के क्वेश्चंस केस स्टडी में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। कि केस स्टडी में वो ये डिफरेंट एमसीक्यूज वाले पार्ट दे दिए हैं एंड देन फॉलोड बाय कि आपको बता दिया कि स्क्वायर का साइड y है, सर्कल का रेडियस अगर x है, गेट द एक्सप्रेशन फॉर एरिया, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द एरिया, व्हाट इज द डेरिवेटिव, what for what value of x it will be minimum, the four options are given. So same question can easily be get converted into the mcqs and the case study form. तो इसलिए थ्योरेटिकली कंप्लीट सॉल्व करना समझना बहुत जरूरी है। डू नॉट अंडर दिस इंप्रेशन के भाई पेपर सिर्फ अब एमसीक्यू कहा गया है तो उसमें हम अपना गेस वर्क से या एक दो स्टेप लिखेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस की अगर बात करी गई है, 40 एमसीक्यू, तो वो जनरली 40 या 50 मिनट में होने चाहिए, बट स्टिल बोर्ड इज गिविंग 90 मिनट्स। 1.5 घंटा क्यों दे रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको लिखकर सॉल्व करके चेक करना रहेगा। प्लीज रिमेंबर दैट। So you need to understand the proper way of getting the solutions of any question. I'm waiting. पहले क्वेश्चन को समझिए। Imagine the rough diagram. Window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. तो जब ये दो चीजें मिलेंगी तो विंडो के बीच में लॉजिकली सोचिए ये काउंट नहीं होगा। डायग्राम में बनाया है समझाने के लिए, बट एक्चुअल विंडो की अगर मैं बात करूंगा तो वो ये बन जाएगी, ओनली द आउटर बाउंड्री। दैट वन नीड टू इमेजिन। The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit the maximum light through the hollow opening. So आपको perimeter constant दिया हुआ है 10 meter. So how I can start? Let me take this as 2x. There is a reason. ये इसका mid value, तो ये हो जाएगा radius for the semicircular opening x हो जाएगा। और आप रेक्टेंगुलर के लिए इसको कंपलसरी नहीं है कि 2y ही लेना है, आप 2y ले सकते थे, बट आई एम टेकिंग इट एज y। तो पेरीमीटर का जरा फॉर्मूला सोचें क्या हुआ। पेरीमीटर इस विंडो का दैट इज 2x, नीचे से आ गई लेंथ, फिर वर्टिकली ये y प्लस y, 2y आ गया, प्लस अब जो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। अब ये आपको बेसिक चीजें अगर 7th 8th की क्लियर हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तभी ये सही होगा। एंड आई एम सॉरी बट बिलीव मी ऑन दैट 70-80% स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन गलत लिखते हैं। क्लास 12th की बात हो रही है, तो आगे तो फिर क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो ये सिंपल इमेजिनेशन है, सिंपल सिचुएशंस हैं। नीड टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, सिर्फ 7th 8th के ही बेसिक कुछ चीजों पे अभी फोकस किया है। और ये पेरीमीटर दिया है 10 के इक्वल, तो इससे क्या हो गया? 2x
प्लस 2y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। किसी भी एक वैल्यू को दूसरे की टर्म में लिख दो। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करता हूं तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस, यहाँ 2x आना था, दिस इज 2x। सो बेटर क्या रहेगा, y को मैं एलिमिनेट कर दूं, राइट। तो y को एलिमिनेट करते हैं तो y विल बी 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2। ये आ गया y की वैल्यू। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। डायमेंशंस ऑफ द विंडो का मतलब आपको 2x एंड y की वैल्यू बतानी है, सो दैट टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट कब आएगी, व्हेन मैक्सिमम एरिया इज एक्सपोज्ड। तो आपको एक्चुअली इसका एरिया मैक्सिमम करना है। लैंग्वेज में कहीं भी एरिया टर्म यूज नहीं हुई है। हेयर कम्स द लॉजिक एंड अ कॉमन सेंस दैट मैक्सिमम लाइट कब आएगी, जब मैक्सिमम एरिया रहा होगा इस विंडो का। तो आई नीड टू मैक्सिमाइज इट्स एरिया। अब एरिया फंक्शन क्या बन गया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कुलर ओपनिंग का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस सेमी सर्कल का एरिया, वो तो सिंपल हो गया, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहां x के इक्वल है। तो अब आपको पता है एरिया फंक्शन सिंगल वेरिएबल में लाना है, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां से, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2, एंड ये एज इट इज पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 से यहां 2 कैंसल, ओपन द ब्रैकेट, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। If you note carefully, last two are like terms, so that finally area function सिंपलर फॉर्म में ये आ रहा है। चेक दिस आउट अप टू दिस स्टेप। बस फिर वो ये एरिया फंक्शन बन गया, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, दैट वुड बी फाइनली वेरी इजी। 10 माइनस 4x माइनस 2 पाई एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, और फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dA by dx is equal to 0. This will give me 10 minus 4x minus pi x is 0. Rearrange x common, write in a systematic way as discussed in the last class. पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे और यूनिट आपको मीटर में ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए यहाँ हम यूनिट लगा देंगे और यही मेरे आंसर में जाने वाला है x की वैल्यू। नो नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर एट ऑल। Once I have got the value of x with me,
बस अब तो एज यूजुअल मेथड, गेट द डबल डेरिवेटिव। सो ये रहा मेरा सिंगल डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करना है फिर से। लेट मी डिफरेंशिएट दिस। सो -4 माइनस पाई, minus common, clearly this value is negative. This imply a is maximum when x is 10 upon pi plus 4 meter. फाइनल स्टेप आपसे डायमेंशंस पूछी थी, तो therefore डायमेंशंस, अच्छा अभी आपको y की वैल्यू भी अलग से निकालनी पड़ेगी, तो इट इज बेटर कि आप पहले y निकाल लीजिए। नाउ व्हाट इज y? ये रहा 2 कॉमन बाहर, 1/2, और अगर आप ध्यान से देखें तो -x कॉमन और ब्रैकेट में बच गया था π/2। सो पुट द वैल्यू ऑफ x जो अभी हमने निकाली है एंड सिंप्लीफाई दिस। नॉर्मल LCM and simplify, please do complete in your homework. Once I have the value of y with me, x और y आ गए, so therefore डायमेंशंस क्या हो जाएंगी वो बहुत ध्यान से, 2x मीटर एंड y मीटर। तो x एंड y मेरा आंसर नहीं होगा, 2x एंड y विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। Any step which is not clear? Tomorrow again I have a class at 8 a.m. in the morning. The regular syllabus will continue. तो मॉर्निंग की क्लास में देयर वर ओनली 12 स्टूडेंट्स, तो ये अब आपके ऊपर है, जो 10 स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं पर मॉर्निंग की अगर क्लास मिस करी है, देयर विल बी अ रेगुलर सिलेबस गोइंग ऑन एंड देयर विल बी अ सिंपल कॉन्टिन्यूटी। तो अगर वो चीज़ें मिस हैं तो आगे का चीज़ें मिस होने वाली हैं। और अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, नॉट कमिंग हियर ओनली फॉर द अटेंडेंस, वो अब आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए डू नॉट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर क्लासेस इन द मॉर्निंग ऑल्सो। यस, इस क्वेश्चन में भानु यू विल बी गेटिंग एक्चुअली x इज इक्वल टू y, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब डायमेंशंस क्या हो जाएंगे विंडो की, जो हम बोलेंगे 2x का मतलब 20 upon pi plus 4 meter and the other will be 10 upon pi plus 4, your required answer. So 1, 2 and then these, okay, 3, 4 questions रखे हुए मैंने फॉर फ्रॉम 2D। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि टाइम इज लेसर और वो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एट व्हाट पॉइंट स्लोप ऑफ दिस कर्व इज मैक्सिमम? सो चेक इट आउट, y आपको गिवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप होता है dy by dx which is -3x square plus 6x plus 9, राइट? अब आपको स्लोप को करना है मैक्सिमा, तो स्लोप को आप m कह दो एज अ फंक्शन, और अब याद रखिए इसे आपको करना है जस्टिफाई कि ये कब मैक्सिमम होगा,
किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा के लिए गेट इट्स डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा मिनिमा put the derivative equal to 0 or that would give me the value of x as 1. Get the double derivative which is -6 नेगेटिव आ गया इसका मतलब स्लोप इज मैक्सिमम व्हेन x is 1. आपसे वो पॉइंट पूछा था तो व्हेन x is 1 आप कर्व में x की जगह 1 पुट कर देंगे सिंपली replace the value of x by 1 so -1 cube plus 3 into 1 square and so on. So that is -1 plus 3 plus 9 minus 27 2 11 27 में से 11 गए 6 16 एक बार जरा प्लीज सभी चेक कर लीजिए कैलकुलेशन. So therefore the required point जो है वो आ गया 1, -16. I hope the basic idea is clear. सिंपल क्वेश्चन जो इजीली एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. Also find the maximum slope. Do not miss the second part. I was waiting कि कोई आप में से ये बताए कि अब इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है सिर्फ पॉइंट आया है. मैक्सिमम स्लोप भी पूछा था. मैक्सिमम स्लोप क्या था ये था तो आपको इसे मैक्सिमाइज करना है तब फिर से x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे and that is 3 that is equal to 12. So 2 different parts were asked in this question. So which completes this particular solution. Please mark your attendance, everyone. Then you can leave the class. Mark it.